اچھا کیونکہ ہم بات کریں کراکری کے حوالے سے بھی تو ہمارے سے یہاں سبیہ کیونکہ ہم انٹرپرینیورس کو بہت زیادہ جو انکریج کرتے ہیں. سبیہ عباس ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی اپنی ایک رینج ہمارے ساتھ لے کے یہاں پہ موجود ہے جس میں دیکھیں گے جس میں یوزلی جو ہائی ٹیز کے لیے جیسے کیک کی جو ہے وہ بھی دیکھ رہی اسٹینڈ موجود ہے. بہت اچھا پلیٹر بھی میں ڈفرینٹ دیکھ رہی ہوں, کراکری کے لیے بھی میں دیکھ رہی ہوں. کب سے سبیہ جی آپ کام کر رہی ہیں؟ 2021 سے ہی ہم نے سٹارٹ کیا تھا. اچھا کووڈ کے ٹائم میں, کووڈ کے آفٹر کووڈ نا آئی واز تھنکنگ کہ کیا کیا جائے, کچھ کریٹو کیا جائے, تو دین آئی اسٹارٹیڈ دس. اور یہ جو میں دیکھ رہی ہوں اس پہ پینٹ ہوا ہوا ہے, کیا یہ آپ نے خود کیا ہے؟ ہینڈ پینٹ میری بیٹی نے کیا ہے, میری ایلڈسٹ ڈاٹر نے. اس کے بعد اب ہم نے ورکرز وغیرہ ہائر کی ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ اسٹارٹ میری جو آئیڈیا تو ہم لوگوں کا تھا, سب کا پورے فیملی کا ہی تھا. اور پھر بیٹی نے کہا کہ نہیں اس پہ کچھ ہم پینٹ کرتے ہیں, تو یہ ہینڈ پینٹ ہے پورا. اور کوالٹی جو ہے ہماری یہ مینگو وٹ ہم نے یوز کی ہوئی ہے, تو کوالٹی مطلب گارنٹیڈ دکھائیں تو سبیہ جی کیا کچھ آپ لے کر آئیں تاکہ میں جلدی سے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں. اور پھر مجھے جو میرے ساتھ یہاں پہ جو خواتین ہیں نا میری سیلیبریٹیز, ان سے میں پوچھوں گی کہ یہ تو ذرا ابھی کی چیز ہے نا سارے شش کے, یہ انہوں نے پہلے کیا کیا, ان کے گھر میں کیا ہوتا تھا؟ اچھا یہ تو جناب یہ ہماری راؤنڈ شیف پلیٹر ہے. ہاں دین پھر اس میں جو آج کل چیز پلیٹر, یہ رومبس شیف پلیٹر ہے. مطلب آپ جو بھی ڈرائی آئٹمز ہیں وٹ ایور, فوائل پیپر اور سب کچھ رکھ کے آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ ہمارا پرائس رینج ہے ان کی, یہ ان کی 3500 ایچ. یہ اچھا ہاں, اور یہ ہماری ٹی کیڈی ہے, یہ ہمارا موسٹ ہٹ آئٹم ہے. اور یہ ہماری ٹی کیڈی ہے, کچھ ایلیویٹڈ ہے نا. اوہ یہ تو کافی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. کے لیے یہ شوگر پاٹ اور یہ ساری اس طرح سے جو ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹی بیگ چلے ہوئے, یہاں پہ نیپکنز ہیں. This is nice. یہ ہے نا, اس کی پرائس ہم نے 5500 رکھی ہے. اور یہ ہماری چارپائی, یہ سرونگ چارپائی, سموسے پکوڑے, یہ ہمارا موسٹ آئٹم ہے ڈیورنگ رمضان. اور یہ ہمارا ٹھیلا, سرونگ ٹھیلا. یہ ہمارا کیک پلیٹر ہے, پیڈسٹل پلیٹر ہم نے اس کو نام دیا ہوا ہے. اور یہ ڈیٹیچیبل ہے, تو اس کو مطلب الگ بھی کر سکتے ہیں, مطلب چلا جائے گا کہیں بھی. جی, اور یہ ہماری کٹلری کیڈی ہے. اس میں ہم نے یہ سب نیپکنز رکھے ہوئے ہیں, پھر اس کو ایز اے ویٹ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے. دین یہ ہماری پلیٹرز ہیں, ہماری اور بھی پلیٹرز ہیں. تو یہ ہمارے لانگ پلیٹر ہے, یہ راؤنڈ پلیٹر ہے, یہ ہماری لوڈو ٹیبل بچوں کے لیے. اس میں چائے پیتے ہوئے لوڈو بھی کھیل سکتے ہیں, بڑے بھی ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. بالکل, آپ جیسے نا ونٹر میں تو بہت سب لوگ آپس میں رکنے آتے ہیں, سب ہوتا ہے, تو یہ آپ کی بڑا اچھا بچوں کے لیے اور خود بڑوں کے لیے بھی بڑا اچھا. اب تو آپ کو بہت فائدہ بھی ہو رہا ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ صرف یہ نہیں کہ جی رات کی پہلے ہوتے ڈنرز ہوتے تھے, اب لنچز بھی ہیں, اب ہائی ٹیز بھی ہیں, برانچز بھی ہیں, اور بریک فاسٹ بھی ہے گھروں میں. بچوں کی پلے ڈیٹ پنجاب میں تو بڑا دیکھنے کا آنے والی ہے, اب تو باقی پلے ڈیٹ آنے والی بھی ہے. مجھے بتائیں آپ لوگ اپنے گھر میں جب ایسے کوئی تگڑم اور ششکے کرنے ہوتے ہیں, مطلب یہ تو ابھی میں آپ سے بات کروں کہ آج سے 6-7 سال پہلے اس طرح کے بہت اب چیزیں شروع ہوئی, اس سے پہلے نہیں تھا. مجھے میری تو ایک دعوت ابھی کی ہے جس میں چیزیں میں نے پتہ کیا کیا تھا, یہ جوتے کے ڈبے, آپ کے پاس گفٹ ریپ بڑے بڑے جو مضبوط والے, ان کے اوپر میں نے فوائل پیپر چڑھایا کیونکہ آپ کو نا ڈونگوں کو یا کسی چیز کو اونچا نیچے رکھنے کے لیے. تو یہ چیز کیونکہ ہر بندہ اگر افورڈ نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے کچھ تو ہو نا کہ وہ کیا کرے, اس کی کریٹیوٹی کہیں بالکل. تو یہ سب چیزیں میں نے, اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی ہوں, اگر بڑے ڈنرز ہیں آپ نے 3-4 جگہ پہ, کیونکہ میرے یہاں جس طرح کا سسرال ہے بڑا ہے, تو میں 3 جگہ کھانا جو ہے وہ ٹیبل لگاتی ہوں. تو مجھے ہوتا ہے کہ وہ باہر والا بھی ذرا ایسا اچھا لگے, اندر والا بھی اچھا لگے. ہر جگہ کی پوری ہونے آپ کے پاس یہ والی چوائس میں تو بہت کرتی ہوں کہ میں اپنے جتنے اچھے والے ڈبے باکسز آتے ہیں نا, جو میں جرمنی سے شاپنگ ہے تو میں باکسز سنبھال کے رکھی ہوں, انہیں سنبھال کے رکھوں, ان پہ فوائل پیپر چڑھا کے. جرمنی سے سب سے کیا کن چیزوں کی شاپنگ کرتی ہے جب آپ اپنی کراکری کے حوالے سے کرتی ہیں؟ تو وہاں سے تو میں نا یہ جتنی بھی کراکری یہ والی ملتی ہے نا, اسپون وہ بڑے ہی مزے کے, کیونکہ باقی چیزیں اتنی بھاری کہ وہ لائے. ہاں لیکن ہمارے تو لیمپ تک وہاں سے ہمیں ایک پاگل پنا تھا. لیکن یہ کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے. یہاں آپ جتنی بھی ڈھونڈ لیں نا وہ کلاس وہ نہیں آتی مجھے. مگر اب یہاں پہ کافی چیزیں اب بہت بہتر ہو گیا کہ یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے آن لائن, کچھ آپ کو باہر سے مل جاتی ہے. وہاں وارنٹی ہے, وہاں وارنٹی ہے.
वहाँ अगर आप किसी भी कटलरी सेट को जो एक्सपेंसिव वाला और वहाँ के ब्रांड का ले रहे हैं तो उसकी 2 से 3 साल 4 साल की वारंटी होती है कि उसमें स्टेन नहीं आएगा। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि वो फिर जरा सही रहती है। या हमारी किस्मत है, अच्छी निकल गई तो निकल गई। अगर ढूंढो आपकी आए हो तो मिल भी यहाँ आँख होनी चाहिए आपके पास तो वो चीजें मिल जाती है। अच्छा, कोई ऐसा भंड हुआ हो आपकी दावत में जो आपको अभी भी याद हो, और स्पेसिफिकली जब शादी के बाद ना, जब आपकी जो पहली दावत होती है और जो आपके घर में दावत होती है तो लोग आपसे बड़ा एक्सपेक्ट कर होते हैं कि देखते हैं कि कैसा बनाती है, क्या क्या खाना बनाती है। और कुछ याद है आपको? मेरे शादी के बाद तो ऐसे मुझे याद नहीं पड़ता कि फौरी तौर पे कोई ऐसा कुछ हो। मैंने तो जब से मेरी सास की डेथ हुई उसके बाद से जब चीज़ें ली, मैंने मिलाद लिया, मजलिस ली, घर के डिनर्स करने शुरू किए। अदनान जब नहीं होते तो मुझे ज़्यादा आसान लगता है काम करना, क्योंकि हमारे यहाँ जब अदनान होते तो उनको लगता है कि अब मैं ना इसमें कोई पार्टिसिपेट करूँ, बेबी इतने दिन से वो कहते हैं उसमें मैं उलझ जाती हूँ क्योंकि 2 लोगों के डिसीजन नहीं हो सकते। अब मैं मेरा डिसीजन होगा या अब मैं कहती हूँ अदनान में बहुत ये आपसे पहले से करते आ रही हूँ तो मुझे पता है मुझे कैसे करना है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, इसको ऐसे रखो कि अल्लाह आज भाई माइकी सुन लो, बस सुन लो। तो ये होती है। अदनान के हाथ की आई हुई चीज अल्लाह ना करे वो टूटे या वो झड़ जाए तो बस मैं कहती हूँ वहाँ मेरी सांस रुक जाती है। अदनान इसी तरह 2 बाजिस लेकर आए, वो सेट था बाजिस का, बहुत ही एक्सपेंसिव सेट था, मतलब और उन्होंने जब लाए तो कल के इसका ना जरा बेगम ख्याल रखिएगा। मैं ये नहीं कहा बेगम इसको लॉकर में रखवा लो, ये नहीं उनका तरीका है, कहते इस्तेमाल करने की चीज, लेकिन भाई एहतियात भी करें ना, हराम के पैसों से थोड़ी चीजें आ रही है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप कोई चीज इतने एहतियात से, मुझे अच्छी तरह मैं लंदन से एक क्रिस्टल की पूरी कैंडल लेकर आई थी, जेल कैंडल थी। मैं पूरे रास्ते ना मैं जब काम में हाथ में से यूं उठाए सोचे क्रिस्टल कितना हेवी होता है, उठाए मैं पाकिस्तान तक आ गई हूँ। सुबह उठी हूँ वो टूटी हुई, ये नजर लग गई होगी। भाभी से मेरी वो कह रही मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे कपड़े में ये लिपटी हुई क्या है। मैंने वो यूं उठाया, वो चूरम, बस जिसके नसीब वो दुख मुझे ऐसा था कि मैं को 3 दिन रोती रही। मैं कहा भाभी मुझे इसका दुख नहीं है, बस मैं वो बता नहीं सकती कि मैं ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जरूरी नहीं होता कि चीज वो आपकी अटैचमेंट भी होती है, जमा करते हैं अटैचमेंट। आपने चीजें पसंद आपको मुश्किल से आई होती है, आपकी हर आप जो भी चीज लेते हैं आपकी उसके साथ अटैचमेंट होती है। हाँ, ये कर लें अटैचमेंट तब तक जब तक आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। मेरे तो अब बच्चों के बच्चे आ गए। जब मैं कराची होती थी, मैं लाहौर जाती थी तो जाके फिर अपने सामने करवाती थी ना डस्टिंग। एक चीज उठाई है, उसके ऊपर से नीचे का नीचे पीस रह गया। मैंने कहा ये क्या, नहीं ये क्या अम्मा ने, वो सादिया कहते वो क्या करते थे, बच्चे ने तोड़ दिया तो फैसी ने कहा कि अम्मा कल आ रही हैं, इनको ऐसे ही रख के बस अम्मा आएंगी तो देख। और अम्मा ने कुछ भी नहीं कहना। मुझे चीजें, बर्तन टूटे, चीजें टूटे, मुझे कोई दुख नहीं होता। मेरे माँ बाप से मेरी ये शिकायत है कि अगर हमने कोई चीज तोड़ी होती थी, और चले मैं अपने अब्बू से कहती थी कि अम्मी की चीज, अम्मी की कोई चीज टूट गई है और अम्मी को नहीं पता चला, तो मेरे अब्बू ऊंची आवाज में कहते थे अब अपनी माँ की क्या चीज तोड़ दी है, तो अम्मी की उधर कान कोई चीज तोड़ दी मेरी, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में होती थी, उनकी जूती भी आ जाती थी। अब उनके पोते या उनके नवास जो तोड़े, मेरा अपना बच्चा भी नहीं कुछ मोहब्बत क्यों होता है, पता नहीं ये है। ये बता माशाल्लाह मेरे घर में माशाल्लाह 4 मुंडे हैं। बस एक सादिया का, 2 बड़े सलमान के, अब एक छोटे भैया नहीं, मैं कहती हूँ तोड़ो भाई, तोड़ोगे तो नहीं आएंगे। मेरा ये वैसे तोड़ोगे तो नहीं आएंगे, नया आएगा। और लोगों का कारोबार भी तो चलना है। बच्चे अब एक दफा ले लिया तो ये कहती हूँ बच्चे तो चले तोड़ देते हैं ना, मगर बड़े भी कोई जान के नहीं तोड़ते ना। अब मेरी मासी से अगर कभी कोई मैं तो पहले उनको कह देती हूँ कि देखो बर्तन धो रही इसमें मेरी थोड़ी जान है, थोड़ा सा एहतियात से धोना, ये बड़ी मुश्किल से जमा किए हुए। तो शीशा नहीं मेरा दिल है। अच्छा टूट भी गया उससे, तो वो बेचारी कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, जान के तो नहीं तोड़ा ना, तुम तो एहतियात ही कर रही थी, अब जो टूटने वाली चीज थी नसीब में नहीं थी वो। अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है, फैसी को बड़ा बुरा लगता है, वो किचन का दरवाजा खुला आहिस्ता
अच्छा वो बर्तन आप धो रहे हैं तो आवाजें आ रही है ना, तो फैसी को लगता है आवाजें आ रही हैं, लड़ाई आ रही है, टूट जाएगा। तो जब मैं जाती हूँ ना तो फिर वो सब बड़े सुकून से हो जाते हैं। अब बाजी है ना, अब बाजी की जिम्मेदारी, अब हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। जिस तरह से बर्तन धो रहे थे जरा सा इतने भी और ये चिप हो जाता है, बेकार हो गया। अच्छा मेरी बात मतलब वही रह गई कि वो एक्चुअली हुआ क्या कि हमने ससुराल की दावत की तो अदनान का जो वास था मैंने कहा पीछे मेरी गलती, मैंने वो मेन टेबल से उठा के मैंने कहा यहाँ सब बैठ के वो ना मैंने नीचे की तरफ से साइड पे सजा दिया ना एक कॉर्नर, इन्होंने मेरा घर देखा तो मैंने कॉर्नर की तरफ से, अब उसके आगे मैंने ना सीटी सी रख दी। अब जो मेरा इन्हीं का ही भांजा बैठा उससे गद्दी से वो जाके जो गया और वो डस करके टूट गया। अच्छा पूरी दावत एक जगह मैं वहीं बैठी, मैं कहा हिना बाजी ये नान लेकर आए थे। अच्छा ये वो तस्वीर है, ये मेरे देवर हैं, ये आप कुर्सी पे आपको नजर आ रहे हैं जो ग्रे कलर के फोन लगा, इससे पहले ये कॉफी टेबल पे बैठे थे और कॉफी टेबल तोड़ दी थी। माशाल्लाह। मैं कहा भाई कॉफी टेबल पे कौन बैठता है? कॉफी टेबल पे बैठ के कैरम खेला जा रहा है। थोड़ी देर फिर मैंने जब वो टूटने की आवाज आई मैं ऊपर से बेटा जुड़वा के दे दूंगा, मैं कहा अब ये जुड़ेगी आप ये कुर्सी ले लें, ये मैं कहा ये किस्सा अभी के अभी सुनवा दूं जो घबराहट का। उस वक्त मैं बैठ गई। फिर ये जो मूंछ वाले भाई हैं, इरफान भाई हैं, इन्होंने अदनान को फोन किया। आप सोचें कितनी मुझ पे दहशत होगी मेरे कहते हैं हाँ यार क्या बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय करें यार। भाई वो बता रहा तुझे ये था वो जो तुम लेकर गए थे इटली से, व्हाइट स्पीकर में सुन रही हूँ। हाँ वो बतख बन गया। अब ये लोग आपस में ऐसी बात करते हैं। अदनान को समझ आएगी कि टूट गया। अरे भाई बतख बना दिया है, अब देखना ऐसा ऐसा पूरा घर चिड़िया करना बन जाएगा घर। तो बात वो आई गई हो गई, लेकिन उन तक पहुंच गई कि वो जो बात वो टूट के बतख बन चुका है। लेकिन भाई मुझे बहुत होता है कि बाकी जब काफी सारे लोग आए ना, ये मेरा से नुकसान जैसे कारपेट पे और जैसे लाइट पे। ये मैं आपको अभी का किस्सा आपको बताती हूँ। अभी का किस्सा, अभी मेरे उसकी सलमान के बड़े बेटे की बर्थडे थी तो हम लोगों ने घर पर ही मैंने उन्हें कहा पहली दफा, उन्होंने कहा माँ आप होस्ट बन जाएं, हम होस्ट हैं आप गेस्ट बन जाएं। मैंने कहा मैं तो बड़ी खुश हूँ। तो मुझे कुछ चीजों में लैक लग रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं बीच में नहीं बोलूंगी ताकि इनमें कॉन्फिडेंस आए और ये भी करें। तो मेरी बहू ने माशाल्लाह सारा कुछ बड़ा जबरदस्त अरेंज किया। उसने स्टॉल लगवाए, गोलगप्पे, फिर वो पता नहीं क्या क्या चीजों के वो लगवाए। और अब जब मेहमान आना शुरू हुए, मुझे पता था, मैंने कहा मेहमान तो कोई 80 के करीब लोग थे, तो मैंने कहा ये सबकी सिटिंग तो कम होगी। तो उसने कहा कोई बात नहीं कुछ ऊपर चले जाएंगे कुछ। मैंने कहा बेटा मेहमान एक जगह बैठने के लिए आते हैं, लेकिन हो सकता है, मैंने कहा उसकी फुफ्फो खाला वगैरह तो ये सोच रही हो कि चले वो ऊपर चले जाएंगे, ये इनके नीचे बैठ जाएंगे, बच्चे बाहर। तो मैंने फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। अब जब ज्यादा मेहमान आ गए ना तो उसने मेरी तरफ देखा कि अम्मा वो मुझे लगता है जगह कम होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा अंदर बैठे। अंदर गई, कहती है मेन डोर खोल दूं? मैंने कहा हाँ खोल दो। फिर कहती है अच्छा तो अम्मा ये हमने तो कोई ना डेकोरेशन उठाई है। तो मैंने कहा बेटा क्यों उठानी है? तो सोफे सूफे लगे में बैठे। कहती है अच्छा तो कारपेट? मैं कहा कुछ नहीं होता सबको बेटा। अब आधे मेहमान अंदर बैठे हुए थे। अब वो जो उसकी फुफ्फो ऊपर से नीचे उतरी तो कहती हैं मैं तो सबा अपने दिल पे मैंने हाथ रखा हुआ था, ये वाइट कारपेट इस पे सब चल रहे हैं। तो मैंने कहा कारपेट होता ही चलने के लिए। सबा तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हो रहा, वाइट कारपेट मेरे दिल को कुछ हो रहा है। और बाद अब ब्रेक भी एक तो जब ब्रेक आती है मैंने कहा भाई खराब हो जाएगा दूसरा आ जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता करे। तो मेरी बहू कहती है मेरा दिल ऐसे हो गया कि अब मैं जहाँ मर्जी बैठूं बैठाऊं। मैंने कहा भाई घर जो है ना सुकून के लिए, टेंशन के लिए नहीं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक लेने